پروفیسر جب آئین بنانے جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ 12 سال سے آئین بن نہیں رہا، اس کو بنانا ہے، اس میں 2-4 پروفیسر لا کے وہ ناکام ہو گئے، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا میں سیاسی آدمی میں جدھر بھی جاتا ہوں پہلے سے لوگوں سے پوچھتا ہوں چاہیے کیا، تو اس چاہنے سے پہلے تو خود اپنے مسئلے کا علم ہونا چاہیے۔ اگر میں کانسٹیٹیوشن کی اور لا کی بات کروں گا، مجھے پتہ ہے آپ میں سے کسی نے آئین پڑھا نہیں، یہ سیدھی سی بات ہے، اس میں شرمانے کی بات نہیں، اس لیے کہ آئین ہمارے معاشرے میں گھر کے کسی بھی کونے میں کسی بھی جگہ پہ رکھا نہیں ہے۔ اخبار جہاں لوگ لکھے ہوں گے، پتہ نہیں خواتین کی میگزین پڑھتے ہوں گی، اب تو وہ چیزیں بھی ختم ہو گئی، انٹرنیٹ اور یہ ہمارے کیا کہتے ہیں گیجٹس جو نئے آئے ہوئے ہیں یہ اسمارٹ فونس کی وجہ سے، اب وہ پیپر کا جو امپورٹنس سے وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو میں فریڈم ایجنٹ سے پوچھتا تھا کہ میں نے آپ آئین میں خواتین کے ساتھ کنسلٹیشنس کی، نوجوانوں کے ساتھ کی، قبائلی سرداروں سے کی، سیاسی لوگوں سے کی، وکلا سے کی، دکانداروں سے، تاجروں سے، تو میں جب چاہتا تھا میں جب آئین میں ترمیم لاتے ہو تو نے کبھی آئین پڑھا ہے؟ میں نے تو آئین کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اسی لیے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آئین میں ترمیم کیسے کریں۔ میں نے کہا آپ کسی خواہش کا انتظار کرتے ہو، آپ کسی معاشرے میں کسی مسئلہ یا تکلیف کو دیکھتے ہو، سمجھتے ہو، جب اس کا اظہار کرتے ہو اکثریت کی رائے سے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، اس کے بعد ہمارا کام ہے کہ اس کو کس طرح لفظوں میں تبدیل کر کے قانون رائے پیش کریں۔ آپ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا قانون رائے نہیں پڑھا لیکن اپنی خواہش کا اظہار کو اوپن نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا معاشرے میں آپ پولیس سے مطمئن ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا آپ اپنے سیریوں میں جہاں پہ کیڑے جواہرات زیادہ ہوتے تھے، تو میں نے کہا آپ پانی کے نظام سے مطمئن ہیں؟ کہتا نہیں ہمارے یہاں پانی سے نہیں آ رہا۔ میں نے کہا آپ اپنے تعلیم کے نظام سے مطمئن ہیں؟ تو وہ مطمئن نہیں تھے۔ آپ میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ مجھے بتائیں، آپ پاکستان میں اس وقت اور بالخصوص کوئٹہ میں آپ لوگ مطمئن ہیں کہ آپ لوگوں کے گھر میں صاف پانی، پینے کا صاف پانی ہر وقت دستیاب ہے؟ آپ بتائیں تاکہ یہ ویڈیو میں سوشل میڈیا میں جا جائے۔ مقامی حکومت ہے کہ اس کو سمجھنا ہے، یہ قانون نہیں ہے، اٹس اے ڈیزائر، اٹس اے ڈیزائر، اٹس اے وش۔ پانی تو میں صاف پانی بھی نہیں ہے، پانی تو اول ہے نہیں، اور اس کے علاوہ پانی بھی صاف نہیں ہے۔ اس سے دیکھیں یہ اچھا آپ لوگ کو مطمئن ہے کہ آپ لوگوں کے گلی کوچوں میں جو صفائی کا نظام ہے اس سے آپ لوگ مطمئن ہے؟ مطمئن نہیں۔ آپ لوگ آپ میں سے کتنے کونسلرز ہیں؟ ماشاء اللہ، چلو آپ نے تقریر کی ہوئی ہے، آپ کو اس سے پہلے آپ بلا لینا، بات کرتے ہیں میں بابوں سے بات کرتے، لیکن خیر بات کریں گے اس پہ۔ آپ میں سے کتنے لوگ مطمئن ہیں کہ آپ کے بچے گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہیں؟ سب مڈل کلاس کے لوگ ہیں، کچھ کبھی تھوڑا بہت امیر ہو جاتے ہیں، کبھی ہو جاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں اتفاق چلا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ مطمئن ہیں کہ آپ اسکولوں میں، آپ کے گورنمنٹ اسکولوں میں آپ بچوں کی اچھی تعلیم ہو؟ آپ تعلیم نہیں مطمئن ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ مطمئن ہیں کہ اگر آپ گھر میں بجلی جو ہے وہ ٹرانسفارمر یا آپ کے بجلی کے مسائل جو ہیں وہ وقت پر حل ہوتے ہیں؟ کوئی نہیں ہوتا۔ تو لوکل گورنمنٹ ہے کیا؟ لوکل گورنمنٹ از آل اباؤٹ کہ جو سہولتیں آپ کو آپ کی گھر کی دہلیز پر بر وقت مل جائیں، یہ ہے لوکل گورنمنٹ۔ مجھ سے پہلے شاید زیادہ آسان اور سہل زبان میں مقررین نے آپ سے بات کی ہوگی تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کوئی قانونی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی آئینی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہے سوسائٹی کے اندر لوگوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جو بھی ہمارے معاشرے کے بنیادی مسائل ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ سے ہے۔ ہم جو لوگ ہیں جن کو ممبر پروونشل اسمبلی کہتے ہیں، میں ممبر نیشنل اسمبلی کے نام سینیٹر بھی ہوں، ہمارا کام ہوتا ہے قانون سازی کرنا، اور جو لوکل گورنمنٹ کی جو سسٹم ہوتا ہے اس کا کام ہے آپ کو یہ بنیادی سہولتیں فراہم کرنا۔ اور پاکستان بدقسمتی سے بنیادی حکومتیں، مقامی حکومتیں یا لوکل گورنمنٹ، پتہ نہیں کس طرح بھی آپ لوگوں کو آسان لگے سمجھنے میں، پاکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں پر لوکل گورنمنٹ کا سسٹم بالکل وجود ہی نہیں رہتا۔ کاغذوں میں ہے
कभी कभी कानून भी बनाए गए हैं। आप में से कितनों के घर में आइन पड़ा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन पड़ा है? कोई बैरान का वो भी वाले साथ आया होगा, आपकी इतनी नहीं होगी है। कॉन्स्टिट्यूशन आजकल आपके फोन पे भी है, आप इसको गूगल करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे वहां पर क्लिक करें, सर्च करें व्हाट्स लोकल गवर्नमेंट, तो आपको पाकिस्तान का इतना बड़ा है ज़मीन है, उसमें आपको लोकल गवर्नमेंट से 2 जगह बहुत मुख्तसर मिलेगी। ये जो बात अभी रात मलिक साहब ने की कि कॉन्स्टिट्यूशन को किसी न किसी तरीके से दुनिया लोकल गवर्नमेंट को कोई कॉन्स्टिट्यूशन कवर देना चाहिए। आज से कोई 1 हफ्ता पहले से दुनिया में किसी किस्म का सेमिनार था, प्रोग्राम था, क्या किस कौन सा ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर भी मैंने यही बातें की कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया में जाके बनाए, जो ममालिक हमारी तरह अभी तक रींग रहे हैं या जो रींगने के वाले जो सिस्टम से गुजर रहे हैं, उनमें बेहतरी के हवाले से तो हमने यही कहा कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में या आइन में लोकल गवर्नमेंट का एक चैप्टर नहीं होगा, एक चैप्टर से मुराद बाब होता है, क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की जुबान में जाऊँ, लफ्जों में जाऊँ, अगर आप लोग भी बोर हो जाओगे मैं भी बोर हो जाऊँ। तो इसीलिए इसको मुख्तसर सहज जुबान में ये करें कि हमारे यहाँ कि लोकल गवर्नमेंट तो जमीन पे मौजूद नहीं है, हमारे यहाँ कानून और आइन में भी इसकी बहुत अच्छी गारंटी नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की जो आबादी है 22 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, अब 24-25 तक पहुँच गई होगी, 10 साल बाद सेंसस होंगे तो 32 करोड़ का भी हो सकता है। इस पूरे मुल्क को चलाने के लिए कोई एक निज़ाम नहीं है कि वो आपको घर की दहलीज पर सहूलियात पहुँचाए। ये मेरे ख्याल में चले गए, उन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है अंग्रेजी में, आप लोग इसको उर्दू में पढ़ूंगा, मुझे पता है सब पढ़ नहीं सकते, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें इसमें तारीफ लिखी गई है, आप तारीफ में भी नहीं जाएंगे। अब करना हमने क्या है, इस मेरे ख्याल में जो जिस तरह का टाइटल दिया हुआ है कि जल्द से जल्द इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में केस लगा है, हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है, हमने असेंबली में इस पर बात की है, एक नया अमेंडमेंट एक्ट जो है बिल आया हुआ है। आई विश कि आप लोग को गवर्नमेंट वालों को बुलाते, आप लोग बुलाए नहीं, बुलाए मतलब इसके डिप्टी सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी है और बाकी दूसरे लोग हैं, अगर आप लोगों को तकलीफ करके उनको बुला लेते तो वो भी वो एक अमेंडमेंट एक्ट जो है वो उन्होंने प्रपोज किया है। मैं पढ़ भी रहा था 2-4 दिन पहले, मसूफियात की नज़र उसको देखता हूँ। ये आवाम की जानिब से बहुत भरपूर मुतालबा, यहाँ से सेमिनारों से, वर्कशॉपों से, कॉन्फ्रेंसेस से निकल कर थोड़ा सा इसको आप लोगों ने स्ट्रीट्स पर लाना है, इसको गलियों की सतह तक ले जाना है, इसको प्रेस क्लब की जानिब ले जाना है, इसको एक बहुत बड़ी मूवमेंट बनानी होगी, एक बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल देना होगा। जब तक आप हुकूमत के ऊपर दबाव नहीं डालते, आपको लोकल गवर्नमेंट का अच्छा निज़ाम नहीं मिलेगा। अब जिस तरह आपने अक्सर ने कहा कि हमारे अंदर में ये सहूलतें नहीं हैं, ये सहूलतें जब आपको नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ताकत का मंबा हमारे पास है, फिर हमसे ऊपर इस्लामाबाद वालों के पास है। हमने सारे वसाइल रोके हुए, हमने पैसे भी रोके हुए, हमने इख्तियारात भी रोके हुए हैं, हम किसी और को काम करने नहीं देते, हम इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, इतने समझदार भी नहीं हैं, इतने एफिशिएंट भी नहीं हैं कि हम काम कर सकें। तो हमने क्या किया हुआ है, हम नहीं चाहते कि लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो। जब लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होगा, इख्तियारात की तफीज होगी, इख्तियारात जो है वो थोड़ा सा डिवॉल्व होंगे। जिस तरह घरों में एक अच्छे घर में की जो खूबसूरती होती है उसके लिए है कि इख्तियारात तकसीम हो। अगर शौहर जो है वो घर में सारे इख्तियारात अपने कब्जे में रखे, वो आपके पड़ोसी खाने में वो सारे कबर्स जिनको अलमारियाँ कहते हैं उनके ताले लगाए और आपको गिन गिन के वो चीनी दे, चावल दे, घी दे, और उसके बाद आपसे फिर आपके घर में कोई सहूलत ना हो, बिजली का सारा सिस्टम भी उसके साथ हो, और जब वो ख़राब हो तो वो सुबह घर से निकले शाम। जिस तरह घर का सिस्टम कैसे ख़राब हो जाता है कि अगर घर का सरबरा इख्तियारात घर के किसी ख़वातीन को, मर्दों को एक साथ तकसीम नहीं करते, एग्जैक्टली हमारे मुल्क में यही हो रहा है। तो जो हमारा नेशनल गवर्नमेंट है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, वो दोनों इख्तियारात नीचे देने के लिए तैयार नहीं है। इसमें पैसे का भी खेल है और फिर में इसमें इंटेंशन भी हैं, इंटेंशन मीन्स इरादे भी नेक नहीं है कि अगर हम इख्तियारात नीचे दे देंगे तो हमारी मुल्क खत्म हो जाएगी, लोग हमारे घरों में आना छोड़ देंगे, फिर हम सिर्फ कानून साजी करेंगे और कानून साजी इनमें से किसी को नहीं आती।
इस असम्बली में लफ्ज लेजिस्लेशन जिसको कहते हैं, कानून साजी कहते हैं, मैं आपको ईमान से कह सकता हूँ, सब मेरे लिए मेरे कुलीग के काबिल एतमाद है, हमारे बशूर मेरे कानून साजी में से किसी को नहीं है। जब आपको कानून साजी नहीं आती तो फिर आप नाली, सड़कें, कचरे वगैरह का ख्याल भी अपने आप में रखना चाहते हैं, क्योंकि आपके ख्याल में था मैं ये काम कर सकूँ। तो ये प्रॉब्लम ये है कि हमने खुद मेरे ख्याल की तस्वीर तकसीम नहीं की है। अब नजरुल्लाह साहब आप लोगों ने मिलकर दिखाई दी होगी अब एजेंडा क्या है। मेरी ज़ाती राय ये है, मैं आपको तारीफ नहीं किया कि आप लोगों ने अगर लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन का इनेकाद जल्द से जल्द करवाना है, दो चीज़ें भी पहले जिस तरह आज ख़वातीन की बड़ी अच्छी तादाद यहाँ जमा है, इसी तरह की एक मूवमेंट बनाए, हैशटैग ट्विटर पे शुरू करें, एक फेसबुक पे कैंपेन शुरू करें, एक अपनी गली कुचों की नालियों की तस्वीर भी दें, टूटे फूटे ट्रांसफार्मर और तारें जो घरों छतों के ऊपर लटकी हुई हैं इनकी तस्वीर दें, अपने इलाके का कि हमारा जो निज़ाम क्या कहते हैं कि जिंदगी है वो दरम बरम है, मुतासिर है, इसको एक MLA ठीक नहीं कर सकता, इसको लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम ठीक करेगा। तो लोकल गवर्नमेंट के पावर्स के लिए एक बहुत बड़ी मूवमेंट चलाए। जब तक आप तहरीक नहीं चलाएंगे, तहरीक से मतलब आपने देखा होगा, क्योंकि बच्चे लाभ बताओ टेंडर तो बेचारे यहाँ के सड़कों के सर्दी में बैठते नहीं हैं, जो आगे पूछता नहीं, किसी के बच्चे मारे जाते हैं तो वो लाशें पूछने तक नहीं रहती, लोग आगे तो पूछता नहीं। ख़वातीन 1700 लोगों टीचर्स के प्रोजेक्टर की तनख्वाहें बंद है, इसी सर्दी में जनवरी फरवरी में वाई सर्दी में जब तक बैठी हुई किसी में जरूरत आ सके। हम बड़े देश माथे से ताल्लुक रखते हैं, हम अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे नहीं है, बोलते हैं सब है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप अंधे और गूंगे हो तो उसके बाद आपको पता नहीं है माशरे में क्या चीज़ को पुकार हो रही है, माशरे के मुतालबात क्या है, माशरा चाहता क्या है। मैं अपने घर से निकलता हूँ तो मेरे वाले साहब कहते हैं कि मुझे 2 टैंकी पानी का लेना है, ये नहीं कि व्यक्ति के घर में कोई आओ, ये बस सिस्टम पूरा मेरे पास रोजाना जब सुबह निकला हूँ लेट भी हुआ, जब बार बार काम हो रही थी, मैंने कहा चलो आदमी की सुबह निकलते हैं तो हमने कोशिश की किसी न किसी तरह बैठे रहे, तो लोग आते हैं निश्चित रूप से, तो मेरे पास मरीजों का जल्द का रहा, किसी को हॉस्पिटल में कहता सर आपने सिविल हॉस्पिटल दिखा दिया, वो कहते हैं हमारे साथ बात पूछने वाला जो है वो मेटल नहीं है, मशीनें नहीं है, इसको प्राइवेट हॉस्पिटल ये कहना मैं तो सच में देख सकते लोगों को देख लेते हो नहीं सकता, बिकॉज सिस्टम इस सब से खुलना है। हम जैसे लोग भी जब कहते हैं तो सरकार चिंता नहीं, तो लोगों को हॉस्पिटल भेजे तो उनको धक्का लेते प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ, आप बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजो धक्का लेते प्राइवेट स्कूल की तरफ, आप घर का नक्शा खोलेंगे उधर से लेगा वो कहेंगे पानी खरीद के ले आओ, आपके घर में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा कहते हैं अपना गेट लगाओ, पुलिस उस इलाके में होती है कहते हैं अपने घर से पूछे ले चौकीदार रखो। इसका मतलब ये है जब रियासत की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो पूरी इसलिए नहीं हो रही, इख्तियारात की जो तकसीम है, इख्तियारात का जो डेवल्यूशन है, उसकी जो एक दूसरे को तफीज़ करना जिसको कहते हैं वो सही नहीं है। और इसके ऊपर मेरे ख्याल में जो अहम बात हो सकती है, नज़रुल्लाह साहब मेरे राय कोई भी हुक्म होगा ऑफर माई सर्विसेज, मैं अपनी तमाम खदमात हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर आप कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत बड़ा लेजिस्लेशन डेवलप करना है आज मैं आप लोगों के लिए स्थायी तौर पर दूसरे लोगों को पैसे देने के लिए मैं मुफ्त करूँगा, आप लोगों को दे दूँगा, आप लोग इसके लिए कंपेन चलाएं। मैं कांग्रेस असेंबली में इसके ला रहा नेशनल सतह की एक कंपेन चलाई कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हैज टू बी सेफगार्डेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इट हैज टू बी क्लियरली डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह है। जब तक ये चीज़ें नहीं होती कोई भी लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम कामयाब नहीं होगा। अयूब खान का नहीं हुआ, जनरल ज़ियाउल का नहीं हुआ, मुशर्रफ का डेफिनेशन ऑफ पावर का नहीं हुआ, ये सारी सिस्टम जो है इसी तरह जो है वो नाकामी का शिकार होते रहेंगे। तीसरी बात ये कि आज आपने जो मजलिस की, मैं थोड़ा सा महरून रहा पार्टी के साथ से जावेद साहब भी आप सब ने इस पर बात की होगी, जानने की होगी, तो मैं महरून रहा, लेकिन एक और डिस्कशन है यहाँ पे कितने एक्सपर्ट्स बैठे हैं, आप लोग लोकल काउंसिलर्स बैठे हैं, मैं आप लोगों को ऑफर करता हूँ असम्बली में मैं एक सेशन बुलवाऊँ। मैंने लास्ट टाइम खवातीन के लिए की,
एक बड़ी अच्छी रेजोल्यूशन पास किया। आप में से कुछ लोग वॉलंटियर करें, 8, 10, 15, 20 खवातीन, पर्टिकुलरली मैं चाहता हूँ कि उसमें खवातीन और मर्दों की अच्छी खासी तादाद हो। हम वहाँ पर कुछ चीज़ें जो है प्लान करें कि हमने एक कैंपेन चलानी है, मूवमेंट इनिशिएट करना है, उसमें इख्तियारात की तकसीम हो, कानून साजी हो, उसमें गवर्नमेंट को जोड़ना हो, ये सारी चीज़ें उसमें बैठ कर उसमें बात कर सकते हैं। तो माई सर्विसेज आर ऑलवेज देयर, आप लोगों के साथ, आप लोगों के इदारे के साथ, आप लोगों का जो काम है हमेशा बलूचिस्तान के, पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में रहा है। इंशाअल्लाह मुझे वक्त अपने सफ़ों में पाएंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ये गवर्नमेंट है भी खुश होगी, सर्दी की है, 1 बज गया, आप लोगों को भूख भी लगी होगी, पता नहीं चाय लेंगे, खाना देंगे आप लोगों को, लेकिन कुछ होगा मेरे ख्याल में। थैंक यू।